Hi dear students, welcome to business studies class. So from we are started the first chapter, that is emerging mode of business. So in this class we are discussing about how online transactions are going to be happen. Okay. So in the emerging mode of business we are discussing about the e-business, and e-commerce. So means whatever traditional business, it is going to be replaced through we are running the business through with the help of internet or electronic devices. So for that we can call the e-business or emerging mode of business. So online transaction is what it occurs when seller, otherwise you can call who are selling their product, sellers and buyers are interacting through or interacting over internet. So seller is going to sell a product and customer, or you can call a buyer, is going to purchase the product, and this process is going to happen through internet. For that transaction we can call the online transaction. So हमने देखा है कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स का मतलब हमने देखा है. तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बेसिकली किस चीज़ के लिए होते हैं? सेलर और बायर के बीच में होती है. सेलर वो आर गोइंग टू सेल द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट, जो माल, खुद का माल वो बेच रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? सेलर. और बायर, बायर यानी कि जिसको वो प्रोडक्ट चाहिए, और कस्टमर जिसको प्रोडक्ट चाहिए, इन दोनों के बीच में जो भी प्रोडक्ट ट्रांसफर इस इंसान से इस इंसान तक वो प्रोडक्ट जा रहा है, और उसके बदले में ये इंसान इस इंसान को पैसा दे रहा है. ओके, सो इट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. सो ये सभी चीज़ें आप शॉप में जाओगे तो आप होगे कस्टमर, और जो भी शॉप का मालिक है वो रहेगा सेलर. वो आपको प्रोडक्ट देगा, उसके बदले में आप उसको पैसा दोगे. सो ये जो भी शॉपिंग ट्रांजैक्शन हो रहा है वो वहाँ पे फिजिकली हो रहा है, आमने सामने हो रही है. बट यही चीज़ सेलर इज गोइंग टू सेल द प्रोडक्ट, buyer or customer is going to purchase the product. Instead of that, buyer is going to give the money to seller. So whatever it may be the process, this process is going to happen through internet, over internet. For this process we can call the online transaction. So for this process we can call the online transaction. So now let's see. He is a seller. He is with lot of products. He is a seller, and he is going to sell that product to customer. Okay, he is a customer. Seller is going to sell the product, and customer is going to give a money. Is a money. Seller is going to sell the product to customer. Customer is going to give a money to seller for that product. Okay, एक चीज़ बेसिकली हम शॉप में जाओगे तो शॉपकीपर इज लाइक अ सेलर ऑफ दैट प्रोडक्ट, एंड आप लोगे यू आर अ कस्टमर. इंस्टेड ऑफ दैट यू आर गोइंग टू गिव अ मनी टू दैट प्रोडक्ट, मनी टू दैट सेलर फॉर दैट प्रोडक्ट. सो यही चीज़, यही सेलिंग और बाइंग प्रोसेस दैट इज गोइंग टू हैपन ओवर इंटरनेट, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. सो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व विद इन द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन? So according to exam point of view, this is an important question. So then we ask for 4 marks. What are the steps involved within an online transaction? So first step is registration. So registration means what? First step, it is a registration. Means customer, he have mobile. Okay, within that we should download a particular app or application of online shopping application that customer should download within their mobile phones. Otherwise, just a customer visit to the website of online shopping. So customer को के पास जो भी गैजेट्स है उससे, मोबाइल फ़ोन से नहीं तो कंप्यूटर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, नहीं तो वो कस्टमर डायरेक्टली उस वेबसाइट में जाएगा. ओके, सो इफ कस्टमर से डाउनलोड एप्लीकेशन लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, स्नैपडील है, लॉट ऑफ शॉपिंग एप्लीकेशंस आर देयर.
So customer can download that application with the help of internet. Okay. So once the customer download that application with help of internet, so after that, if that customer open that application, first that application is going to ask about the registration of that customer. So इन्होंने वेबसाइट बनाई, सेलर ने वेबसाइट बनाया है, सेलर ने पर्टिकुलर ऐप बनाई है, तो कस्टमर क्या करेगा, एक कस्टमर इस सेलर का ऐप अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में डाउनलोड करेगा, नहीं तो इस सेलर ने जो भी वेबसाइट बनाई है वो वेबसाइट पे एक कस्टमर जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए. सो आफ्टर द कस्टमर रीच टू देयर वेबसाइट, there they are going to ask about the registration. So within the registration, the seller is going to ask about the detailed things of customer. So customer का जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेलर को चाहिए, क्योंकि सेलर कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वो कौन से एड्रेस पे जाएगा, उस सेलर का, उस बायर का, उस कस्टमर का नाम क्या है, एक डिटेल तो सेलर के पास होनी चाहिए ना, किसको भेजना है वो प्रोडक्ट को डिटेल सेलर के पास होनी चाहिए. तो इसलिए सेलर क्या कस्टमर को पूछता है कि तेरा डिटेल्स दे दो. सो दैट इज द रजिस्ट्रेशन. सो विदिन द रजिस्ट्रेशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बिफोर ऑनलाइन शॉपिंग रजिस्टर योरसेल्फ. सो व्हेन थिंक एंड योर कस्टमर, व्हेन यू डाउनलोड एनी एप्लीकेशन, शॉपिंग एप्लीकेशन इन योर मोबाइल, इट इज गोइंग टू आस्क अबाउट द रजिस्ट्रेशन. Means it is going to ask about your email, it is going to ask about your phone number, it is going to ask about your name, it is going to ask about your address. So such a kind of information of customer it is going to collected by the seller, because seller should know to whom we have to sell that product. आपने प्रोडक्ट खरीदा है बट सेलर को तो आपके घर पे पहुंचवाना है ना वो प्रोडक्ट, तो सेलर को पता होना चाहिए कि आपका नाम क्या है, पर्टिकुलर फोन नंबर चाहिए, उसको ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी चाहिए, क्योंकि दे शुड सेंड द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोडक्ट. ओके. सो फॉर कस्टमर should provide the details of themselves. Okay. So within the registration, so fill with all the details and password. So सभी आपका नाम, पासवर्ड, आपका नाम, फोन नंबर, मेल आईडी, address, you have to insert everything within that registration and you should submit to that seller, and you have to keep a particular password for it because your information should keep a safe. आपका जो भी इंफॉर्मेशन आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे दिया है वो इंफॉर्मेशन दूसरे को ना मिले, इसलिए आपको एक पर्टिकुलर पासवर्ड सेटअप करना पड़ेगा. एक तो स्टेप फॉर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, आप यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ देयर. ओके. सेकंड स्टेप, प्लेसिंग एन ऑर्डर. सो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उसके होम पेज में जाओगे और आपको डिफरेंट प्रोडक्ट को, एप्लीकेशन को, ऐप को, वेबसाइट दिखाएगा. So you have to search which product you want. Just you have to search and select that product. So आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो आप ऑनलाइन शॉपिंग पे सर्च करते हो, उसके बाद वो प्रोडक्ट आपको पसंद आया तो वहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग पे एक कार्ड, जैसे बैग का ऐसे शॉपिंग कार्ड का सिंबल रहता है, नहीं तो ऐसा बैग का सिंबल रहता है, माइट यू ऑब्जर्व, ऐसा बैग का सिंबल रहता है ना. सो मतलब आपने शॉपिंग की है उस चीज़ का. Okay, so just if you add to cart, just you have to click add to cart. एक आपने टी शर्ट देखा है और आपको पसंद आ गया तो आप साइज चूज करते हो कौन सी साइज है, जस्ट यू आर क्लिकिंग ऑन ऐड टू कार्ट. सो ऐड टू कार्ट करने के बाद प्लेसिंग एन ऑर्डर, मतलब जो चीज़ आपको पसंद आई है वो आपने कार्ट में डाला है, वो आपके बैग में डाला है. सो इफ कस्टमर लाइक्स एनी प्रोडक्ट देन दे save that product into shopping cart. So whichever product it is liked by customer, that customer is going to save that product in their cart. So जो भी कार्ट का चीज़ है वहाँ पे कस्टमर वो प्रोडक्ट चूज करता है, साइज वगैरह कितना, क्वांटिटी चाहिए, क्या चाहिए, वो कस्टमर सिलेक्ट करता है और आप उनके कार्ट में डालते हैं. आफ्टर दैट कार्ट मीन्स व्हाट, इट इज ऑनलाइन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट यू सिलेक्टेड. It is an online record. Cart means what? It is an online record of what you selected. So it is record. So how much items you are selected? It is online record. Okay. So after you should choose whichever product you like. After that, that product you should
add in a cart. Okay, so after that you have to place an order. So वो प्रोडक्ट आपके घर पे आने के लिए आपको ऑर्डर देना पड़ेगा. Now you should click on order. Okay, so after that one question it is going to ask what should be the payment mechanism. Okay, so payment mechanism मतलब एक तो सेलर आपको प्रोडक्ट दे रहा है, उसके बदले में आप उस सेलर को पैसा दोगे, बट पैसा देने के लिए भी डिफरेंट वेज है, पैसा देने का भी डिफरेंट तरीका है. तो वो ऐप आपको पूछेगा, वो वेबसाइट आपको पूछेगी आप पैसा कैसे दोगे. एक तो COD दैट इज कैश ऑन डिलीवरी, मतलब प्रोडक्ट आपको मिलने के बाद आप पैसा दोगे, और नेट बैंकिंग यूज़ करके पैसा दोगे, क्रेडिट डेबिट कार्ड का यूज़ करके पैसा दोगे, और डिजिटल कैश में पैसा दोगे, मतलब चेक में पैसा दोगे. विच फॉर्म ऑफ पेमेंट यू आर गोइंग टू चूज. सो एक तो प्रोडक्ट आपने चूज किया, उसके लिए ऑर्डर किया, पर्टिकुलर एड्रेस दिया, तो उसके बाद आप पैसा कैसा दोगे वो तरीका भी आपको चूज करने के लिए और एक ऑप्शन पूछता है. सो डिटेल में देखेंगे कि कौन से तरीके हैं ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त पेमेंट करने का. पेमेंट मैकेनिज्म विच आर द पेमेंट मैकेनिज्म कम्स अंडर द ऑनलाइन शॉपिंग. सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. So payment mechanism में first है COD. The full form is cash on delivery. So already you are familiar with this. So what is cash on delivery means what? Buyer make payment after delivery of product. Buyer make a payment after delivery of a product. See now he is a seller and he is a buyer, or we can call कस्टमर. तो ये लाइक एग्जांपल अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है. सो दीज आर द सेलर ऑफ प्रोडक्ट और वी आर कस्टमर. सो पैसा ये याद यूज करके आपने एक पर्टिकुलर चीज़ ऑर्डर की है, आपने एक टी-शर्ट ऑर्डर किया है, तो टी-शर्ट का पैसा आप कब दोगे. एक मेथड है, वो टी-शर्ट आपके घर पे आएगा तब आप पैसा दोगे. Okay, that is a cash on delivery. Okay, which buyer make a payment, is a buyer or customer make a payment when otherwise after the delivery of product. So यहाँ से वो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, यहाँ से टी-शर्ट ऑर्डर किया है, तो टी-शर्ट इसके घर पे जब आएगा तब कस्टमर उस टी-शर्ट का पैसा देगा. That is a cash on delivery. The next is through check. Through check, how we can give a payment? When buyer send a check to seller, then seller send product to buyer. Check सी कैश ऑन डिलीवरी में फर्स्ट कैसा होता था, फर्स्ट सेलर को कस्टमर के घर पे वो प्रोडक्ट बेचना है, उसके बाद कस्टमर पैसा देगा. यहाँ पे क्या है चेक में, फर्स्ट कस्टमर शुड गिव चेक टू सेलर. सो सेलर के पास उस कस्टमर का चेक आने के बाद seller is going to send that product to the customer's home. Okay, that is a check facility. Next, net banking. See, for सभी चीज़ों में फर्स्ट जो चीज़ है वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी पे पहले सेलर कस्टमर के घर के पास जाएगा और डिलीवरी पहुँच जाएगा और उससे पैसा लेगा. यानी इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलर. उसके बाद कस्टमर पैसा लेगा. बट बाकी जो भी थ्रू चेक है, नेट बैंकिंग है, क्रेडिट डेबिट कार्ड है, अदरवाइज डिजिटल कैश है, वहाँ पे फर्स्ट कस्टमर को पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके घर पे वो प्रोडक्ट आएगा. फर्स्ट केस में क्या है, सेलर को फर्स्ट आपको प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, उसके बाद आप उस चीज़ का पैसा दे सकते हो. सो थ्रू चेक इट इज व्हाट. नेक्स्ट, नेट बैंकिंग. सो इट इज टू कंसेप्ट्स आर देयर, नेट बैंकिंग और यू कैन कॉल मोबाइल बैंकिंग. So slightly difference is there, otherwise both are same. Okay, so net banking or you can call the mobile banking. So buyer through this facility transfer fund electronically to seller through then seller send the product. So जो भी हम एप्लीकेशन यूज करते हैं मोबाइल में, फोन पे है, अमेज़ॉन पे है, गूगल पे है, इट कम्स अंडर द मोबाइल बैंकिंग. सो जो भी हम प्रोडक्ट ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं वो मोबाइल यानी कि पर्टिकुलर एप्लीकेशन से, फ़ोन पे से हमने उस ऑनलाइन शॉपिंग की है उसका पैसा भरा, अमेज़ॉन पे से ऑनलाइन जो शॉपिंग की उसका पैसा भरा है, अदरवाइज गूगल पे से जो भी ऑनलाइन शॉपिंग किया है उसका
भीम यूपी जनरेट होता है उससे हमने पैसा भरा है, सो दैट इज कम्स अंडर द मोबाइल बैंकिंग। सो नेट बैंकिंग इज द सिमिलर, मतलब मोबाइल बैंकिंग पर्टिकुलर आपने ऐप डाउनलोड किया रहता है फोन पे, गूगल पे, ओके, अमेजोन पे, वहाँ से आप जो भी प्रोडक्ट खरीदा है उसका पेमेंट कर सकते हो। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में डिफरेंस क्या है? मोबाइल बैंकिंग में आप एक पर्टिकुलर मोबाइल में एप्लीकेशन ऐप यूज करते हो, दैट इज द मोबाइल बैंकिंग। और नेट बैंकिंग यानी कि उस एप्लीकेशन के पर्टिकुलर वेबसाइट में जाके वो आप मनी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, यानी कि आपका जो कौन सा भी बैंक है उस बैंक का एप्लीकेशन में जाके आपका डिटेल्स, अकाउंट का डिटेल्स लिख के वो पेमेंट करते हो, दैट इज द नेट बैंकिंग। ओके, सो डायरेक्टली जो भी आपने पासवर्ड सेट किया है वो पासवर्ड एंटर करने के बाद जितना भी अमाउंट है वो एंटर करो, ऑटोमेटिकली नेट बैंकिंग फोन पे, गूगल पे से हो जाएगा, दैट इज नेट बैंकिंग और यू कैन कॉल द मोबाइल बैंक। नियरली बोथ आर सेम। नेक्स्ट वन, दैट इज क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स। So whatever you have, there are three types of cards are there. One is ATM card, next credit card and debit card. Okay, ATM card तो सिर्फ we can use in ATMs only. It is not allowed for any other purposes. यानी कि मोस्टली जो भी ATM कार्ड हम लेते हैं वो सिर्फ ATM के मशीन में ही यूज होता है। बाकी जो भी हम कार्ड देके और स्वाइप करके शॉपिंग करते हैं वहाँ पे ATM कार्ड यूज नहीं होता। बट डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी उनका डिटेल देके इस बायर शेयर द कार्ड डिटेल्स टू सेलर एंड पर्टिकुलर अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द बायर्स अकाउंट। So whatever the credit card or debit card information is there, we are going to sending that information to seller and how much amount we are short. So that much amount is deducted from our account and that amount it is given to the seller's account. That amount is transferred to the seller's account. So that is the credit or debit card. So credit card और debit card आपके पास एक कार्ड रहता है पर्टिकुलर, उसका डिटेल यानी कि कार्ड नंबर और वो कार्ड कब एक्सपायर होगा वो डिटेल पूछते हैं। उसके बाद कार्ड के पीछे एक 3 नंबर्स रहता है, CVV करके उसको बोलते हैं, CVV। सो मोस्टली वो CVV नंबर आपको एंटर करने के लिए बोलते हैं। तो उसके बाद जो भी जितना भी अमाउंट का आपने शॉपिंग किया है उतना अमाउंट आपके अकाउंट में डिडक्ट हो जाता है, उतने अकाउंट में से निकल जाता है। सो दैट इज द क्रेडिट और डेबिट कार्ड। जस्ट आई टोल्ड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्ड। एक तो ATM कार्ड है, सिर्फ ATM में यूज होते हैं, उसके ऊपर रुपए अदरवाइज जो भी सिम्बॉल्स बना रहता है ना रुपए का वो नहीं रहता, सिर्फ वो ATM में यूज करते हैं। और डेबिट कार्ड जो भी हमारा हम मोस्टली यूज करते हैं वो डेबिट कार्ड रहता है। डेबिट यानी कि जो आपका अकाउंट में पैसा है उसका कार्ड आपको मिलेगा। सो आपने शॉपिंग किया तो आपके अकाउंट में से पैसा कट होता जाएगा, डिडक्ट होता जाएगा, दैट इज द डेबिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड में क्या है, क्रेडिट कार्ड बैंक सब लोगों को नहीं देती, स्पेशल लोगों को ही बैंक क्रेडिट कार्ड देती है। तो उसमें क्या है, वहाँ पे आपके अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी आपको शॉपिंग करना है तो बैंक आपको खुद का पैसा आपको देगी, दैट इज द फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड। और आपके अकाउंट में जब भी पैसा आएगा वो बैंक आपसे वापस देगी, दैट इज द क्रेडिट कार्ड। सो मोस्टली क्रेडिट कार्ड सबको तो इशू नहीं किया जाता, फॉर स्पेशल पर्सन ओनली क्रेडिट कार्ड इज इशूइंग बाय द बैंक। सो डेबिट कार्ड who have the saving account within the bank, so to them mostly to all of them bank is going to provide the debit cards. So mostly जो भी हम ATM कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं ना दैट इज द डेबिट कार्ड। ओके, सो ATM कार्ड डिफरेंट रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ ATM में ही यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे ATM कार्ड का तो यूज नहीं है क्योंकि ATM से हम यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहे। सो क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स का डिटेल्स यानी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर, after that when it is going to be expire your credit card debit card and what is the CVV of your debit card. So this details it is going to be asked and that much amount it is deducted from your account and it is going to be payable, it is going to pay to your seller, then seller is going to send that product to you. Next one, that is a digital cash. So this electronic currency, see there is a difference between net banking, mobile banking and digital cash. सो नेट बैंकिंग में क्या रहता है, आपका अकाउंट ऑलरेडी बैंक में रहता है, सो वही अकाउंट डिटेल आप नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में यूज करके आपके अकाउंट में से पैसा कट हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे डिजिटल कैश
कैश में क्या रहता है, आप एक पर्टिकुलर कैश बैंक को दोगे और बैंक को बोलोगे कि ये जो मेरा कैश है, सपोज आपने 50,000 दिया है, ये जो मेरा कैश है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कैश पैसे के फॉर्म में रहता है, हमें दिखता है, बट वही डिजिटल फॉर्म यानी साइबर स्पेस में आपका मनी कन्वर्ट हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में आपका मनी कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इलेक्ट्रॉनिक करेंसी ओनली अवेलेबल इन साइबर स्पेस, सिर्फ साइबर स्पेस में अवेलेबल रहता है। सो आपने 50,000 आपको बैंक को देना है, तो जितना चाहे दे सकते हो, बट सपोज एग्जांपल 50,000 आपने बैंक को दिया और बैंक को बोला कि मुझे ये अमाउंट वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल कैश। यू कैन कॉल द ई करेंसी, ई कैश, देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर डिजिटल कैश। ओके, सो डिजिटल यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म में सिर्फ रहता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है, पैसों के फॉर्म में नहीं रहता। So user of this deposit fund in a bank account and bank issues a special software that allow you to withdraw a digital cash. So आप जो भी बैंक को पैसा देते हो और बैंक को बोलते हैं कि ये पैसा मुझे डिजिटल कैश में कन्वर्ट करना है, ई कैश में कन्वर्ट करना है, तो बैंक को आपको कैश एक पर्टिकुलर एक लिंक देगी, एक डिस्क देगी, नहीं तो एक चिप और पेन ड्राइव देगी और एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर देगी बैंक आपको। वो सॉफ्टवेयर आपको लेना है और उस सॉफ्टवेयर की मदद से, उस एप्लीकेशन की मदद से आपको पेमेंट करना है। सो मोस्टली अभी भी ये इतना फेमस नहीं है डिजिटल कैश। सो बैंक यहाँ पे आपको पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगी और नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में आपको प्ले स्टोर में वो पर्टिकुलर ऐप मिल जाएगा। इट इज़ ओपन एप्लीकेशन, बट डिजिटल कैश इज नॉट ओपन एप्लीकेशन। स्पेशली यू हैव टू विजिट योर बैंक and there you should tell to your bank you want to convert your cash into digital cash, so they are going to provide you a particular software. By using that software you can go for the payment mechanism. So these are the payment mechanism for online shopping. I hope you got what are the steps involved within the online transaction and what are the payment mechanism available when you are going for the online shopping. So I hope you got the clear concept about it. Still, if you have any doubt, I will clarify your doubt within the live class. So thank you so much. Bye bye. Take care.